motorcycle is never just about the engine size, engine power, or the spec sheet that a motorcycle carries. For me, honestly, it's about the kind of journey that I want to experience with my motorcycle. So, after riding almost 40 to 45,000 kilometers through ghat sections, through highways, through off-road stretches in my previous motorcycle, which was Yamaha FZS version 3 2019 model, finally I decided to upgrade my motorcycle from 150cc segment to a mid-segment highway and off-road capable motorcycle. And that's why I choose this 390 Adventure from KTM over other motorcycle. Those are currently available in Indian market, like 452 Himalayan from Royal Enfield, then Triumph Scrambler 400, and also that 310 GS from BMW. And in today's video, I'll share why I choose this 390 Adventure, and also I'll share whether this motorcycle actually makes sense for Indian roads and Indian riders like me. Before starting the video, I want to introduce myself. My name is Mrinmay and I welcome you all in my channel Rotating Wheels once again with a brand new video. And from today onwards, I'm going to start a new journey with my new motorcycle in this channel. So the time when I decided to upgrade my motorcycle, my expectations were so clear कि जो सब चीज़ें मैं अपने पुराने FZS में अच्छे से नहीं कर पाता था, like highway touring, cruising at decent speed, then occasional off-roads, वो सब चीज़ें मैं अपने न्यू मोटरसाइकिल में अच्छे से कर पाऊँ, ये था मेरा expectations. And the people who are from Bangalore, they can relate to me. अगर आप लोग कभी भी बेंगलोर से कहीं पे भी जाओगे तो you'll have to face a long stretch of highways in the beginning of your ride. अगर आप तमिलनाडु के साइड जाओगे या फिर केरला के साइड या फिर गोवा के साइड, or even if you are going towards the north side, then you will have to spend a lot of time highways पे. तो इसके वजह से मेरा जो first priority था, it was the highway. And if I come to my second priority, then it's occasional off-roads. क्या होता है कि वीकेंड्स पे हम लोग बेंगलोर के आसपास बहुत सारे ऑफ-रोड ट्रेल्स होते हैं, लाइक 100 to 150 किलोमीटर्स के अंदर देयर आर सो मेनी स्मॉल हिल्स और बेटा जिसको बोलते हैं, वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग चले जाते हैं अपना मोटरसाइकिल लेके. एंड फॉर दैट रीज़न मुझे एक ऐसा मशीन चाहिए था जो अच्छे से ऑफ-रोड कर पाए. एंड माई 390 एडवेंचर कैन डू बोथ वेरी स्मूथली. आप हाईवे कह लो या फिर ऑफ-रोड कह लो. So keeping all these things in my mind, मैं last 1 year से multiple numbers of motorcycle का multiple numbers of test ride लिया था. And उसमें जो first test ride लिया था, it was Scrambler 400 from Triumph. उसका almost मुझे सब कुछ ठीक ही लगा था. Just जो design है, it was so compact and also the engine characteristics वो मुझे उतना खास नहीं लगा मेरे riding style के according. Like I was feeling कि मैं एक KTM का इंजन ही राइड कर रहा हूँ with a Scrambler मोटरसाइकिल. तो इसके वजह से मैं उस बाइक को अपने कंसिडरेशन में उतना नहीं रखा था. Then I went for Himalayan 452 also, which was recently launched at that time. उसका जो फर्स्ट टेस्ट राइड था उसमें ही मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था एंड मैं डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे यही मोटरसाइकिल लेना है. बट यू नो रॉयल एनफील्ड, इसका थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी का इशू रहता है. लाइक फर्स्ट और सेकंड स्लॉट्स के जो सब मोटरसाइकिल्स थे वो मैं स्किप करने का प्लान था. एंड ऑल्सो बजट कंस्ट्रेंट की वजह से आई वॉज डिलेइंग माई प्लान टू परचेज दैट हिमालयन 452. बट मीनवाइल एट दैट टाइम सडनली KTM ने लॉन्च कर दिया था अपना 390 का S और X वर्जन, जो डिज़ाइन वाइज एंड इवन स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था पुराना 390 KTM एडवेंचर से. देन मैं 390 एडवेंचर का भी मल्टीपल नंबर्स ऑफ टेस्ट राइड लिया था. उसमें जो फर्स्ट टेस्ट राइड था, इट वाज 390X वर्जन फ्रॉम KTM व्हाइटफील्ड. उसका जो इनिशियल इम्प्रेशन था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, मे बी पर्टिकुलरली फॉर दैट पीस ऑफ मोटरसाइकिल. उसका इंजन वाज सो नॉइजी एंड वाइवी एंड also suspension was somewhere in stiffer side. Then I went for another test ride from KTM Marathali. उधर मुझे मिला था 390S मॉडल एंड ऑनेस्टली वो मोटरसाइकिल चला के बहुत ज़्यादा
सेटिस्फाइड था मैं। उसका 21 इंच व्हील सेटअप के साथ एडजस्टेबल सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा बैलेंस था एंड ऑल्सो द इंजन वाज नॉट दैट मच रफ लाइक प्रीवियसली जो मैं 390X में एक्सपीरियंस किया था। तो इसके वजह से मैं थोड़ा थोड़ा 390 की तरफ लीन हो रहा था। Although 390 Adventure is fully feature loaded motorcycle and 452 Himalayan is somewhere we can say it's a raw motorcycle, still I was so confused कि मुझे कौन सा motorcycle लेना है। There are so many videos in YouTube 390 versus 452 एक एक करके मैं सब देख लिया। देन मैं 390 एडवेंचर और 452 हिमालयन को लेके एक शॉर्ट राइड पे भी गया था। समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स के आसपास होगा वो राइड एंड उस राइड के दौरान मैं फील किया कि 452 हिमालयन जो है वो थोड़ा हेवी है एंड मैं एक ऐसा मोटरसाइकिल एक्सपेक्ट कर रहा था जो लाइट वेट हो, जो मैं इजीली कंट्रोल और मैन्यूवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा हाइट वाला इंसान नहीं हूँ, मैं थोड़ा लो हाइट वाला इंसान हूँ। एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड टू गो विथ 390 एडवेंचर। मैं इस वीडियो में 390 वर्सेस 452 का उतना बात नहीं करूंगा, रेदर आई विल डिस्कस व्हाई एंड हाउ आई परचेज दिस मोटरसाइकिल। So I rode this motorcycle almost 4,000 kilometers till now and I felt this motorcycle and its engine gives the perfect balance of power and control. The 398cc liquid cooled engine that provides 46 PS of bhp and 39 Nm of torque, ये एक ऐसा पावर रेंज है जो आप एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ ये मोटरसाइकिल आप हाईवेज में इजीली क्रूज कर सकते हो। मैं इसको लेके 90 to 120 किलोमीटर पर आवर्स पे होल डे क्रूज किया है एंड बिलीव मी ये मोटरसाइकिल रोड के ऊपर एकदम अच्छे से चिपक के रहता है। विंड बफेट की वजह से इधर उधर ये मोटरसाइकिल मूव नहीं करता है एंड ऑल्सो इट्स लो एंड टॉर्क इज सो गुड। इसका जो क्रॉलिंग फीचर है इसके वजह से आप सिटी वगैरह में या फिर स्लो ट्रैफिक में इजीली मूव कर सकते हो। ये मोटरसाइकिल एक्चुअली बहुत ही लाइट वेट है एंड ऑल्सो दिस मच ऑफ पावर actually gives you a lot of thrill and you can overtake any vehicle in the highways or even in the city rides. If I talk about the comfort, then its upright riding posture and long windshield makes you ride very comfortable and this doesn't punish my body actually whenever I was in long day ride or multiple day ride. Although the stock seat is not that much comfortable, but I can say आप ये stock seat के साथ भी long trips कर सकते हो। Just like I did 1700 kilometers in last month throughout the Kerala, and out of that 1700 kilometers, I did 400 kilometers in one day, and on that day I felt some pain in my bum, and इसके वजह से जब मैं बेंगलुरु वापस आया तो मैं ये सीट को मॉडिफाई करा लिया था एंड आप देख सकते हो ये सीट अभी मॉडिफाइड है एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे हो तो आप भी ये सीट को मॉडिफाई करा लो ताकि आपके पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल हो एंड आपके लिए भी कंफर्टेबल हो। देन कम टू दी वाइब्रेशन, नो डाउट ये मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। इंजन जो है ये 398cc वो KTM ने न्यू बिल्ड किया है एंड आई कैन से ये मोटरसाइकिल का जो वाइब्रेशन है वो फर्स्ट सर्विस के बाद 40 to 45% रिड्यूस हो चुका है एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि सेकेंड सर्विस के बाद इसका वाइब्रेशन और भी कम होगा, क्योंकि मैं जो रिव्यू वीडियोस वगैरह देखा है उसमें दे सेड लाइक आफ्टर द सेकेंड सर्विस वाइब्रेशन कम होता है। Definitely in upcoming videos I'll update you regarding this vibration in this channel. One of the biggest reason to choose this motorcycle was the suspension, because you know Indian roads are so much unpredictable and this 390 handles potholes and broken roads very smoothly. Also this suspensions comes with the adjustability in front and rear both, जिसको आप अपने riding style के हिसाब से set कर सकते हो। With this suspension, this 390 comes with the spoke wheels. This is the reason why I choose this 390 Adventure S version over X version. And also the front section comes with the 21-inch wheel setup, and you know this 21-inch wheel can glide through all the potholes and broken roads
जो आपको इंडियन रोड्स के लिए बेनिफिशियल बना देता है। Then I want to talk about the seat height and its agility. I am 169 cm of height, and for me this 830 mm of seat quite manageable and comfortable throughout the days whenever I go for any long ride or some off-road trails. With the seat height, this motorcycle is also very lightweight. I think somewhere around 183 to 184 kg this motorcycle is, and because of this lightweight I can easily ride this motorcycle wherever I want, and इसके वजह से मुझे अच्छा खासा confidence मिलता है। In terms of feature, no one can beat this 390 in this segment, and also one thing you need to agree with me that more feature is more headache. कब कौन सा warning आ जाए किसी को नहीं पता है। And the feature that I have used most is the cruise control. As I have already said, बेंगलोर से आप कभी भी निकलोगे तो you'll have to face a long stretch of highways, तो उसके वजह से मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर जो है वो है क्रूज कंट्रोल। देन इफ आई कम टू द सेकेंड फीचर, दैट्स क्विक शिफ्टर। If I stuck in the city or somewhere in slow traffic, then I use this quick shifter a lot, but manually clutch pull करके ही मैं अपना gears वगैरह change करना prefer करता हूँ। Apart from that, there are so many features that KTM has given in this motorcycle, like traction control, switchable ABS, cornering ABS, then ride-by-wires, then different riding modes, and also this beautiful TFT display. All these features are very useful in terms of long rides, and safety और confidence के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा helpful रहता है। फिर अगर मैं इसका मेंटेनेंस की बात करूँ तो इट्स वेरी मिनिमल। जो फर्स्ट सर्विस था उसमें मुझे कॉस्ट आया अप्रॉक्स 2000 रुपीज़, एंड सेकेंड सर्विस तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। जब सेकेंड सर्विस हो जाएगा तब उसके रिलेटेड वीडियोस भी मैं ये चैनल पे लाता रहूँगा। एंड ये मोटरसाइकिल को मैंने अभी तक 4000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ, एंड 4000 किलोमीटर्स में मुझे जो एवरेज मिला है फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल, इट्स नॉट दैट मच, लाइक 26 टू 27 के अंदर ही मुझे इसका माइलेज मिला है। जो रिसेंट केरला ट्रिप किया था उसमें माइलेज मिला था मुझे एग्जैक्टली 26 किलोमीटर्स पर लीटर। बट मैं होप करता हूँ कि जब ये मोटरसाइकिल को लेके मैं और भी ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करूँगा तब मुझे अच्छा खासा माइलेज मिले, लाइक 28-29 का एवरेज वी कैन गेट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द स्पेयर पार्ट्स, इट्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट कंपेयर टू BMW एंड Triumph। आई कैन से 390 एडवेंचर का जो स्पेयर पार्ट्स है वो इजीली सर्विस सेंटर के अंदर मिल जाता है, एंड ऑल्सो कॉस्ट वाइज भी ये मिनिमल होता है। अगर मैं इसका कंपेयर करूँ 452 हिमालयन से, देन ऑल्सो देयर आर सम पार्ट्स जो 452 हिमालयन में कॉस्टली आता है। So overall, I can say 390 Adventure is maintenance friendly with all its competitor. Another thing that I want to add is the vlogging perspective. As a moto vlogger, मुझे ऐसा लगता है कि 390 Adventure का जो कंसोल है वो बाकी मोटरसाइकिल से थोड़ा प्रीमियम दिखता है। Like if I compare it with BMW 310 GS or Triumph Scrambler, or even if I compare it with 452 Himalayan, कहीं ना कहीं मुझे 390 एडवेंचर का जो कंसोल है वो मुझे बेटर लगता है बाकी अदर मोटरसाइकिल से। हिमालयन 452 के कंसोल का ये एक इशू है कि आप जब भी कभी वीडियो शूट करोगे तो आपको वो कंसोल के FPS के साथ मैच करके वीडियो शूट करना पड़ता है, नहीं तो वो फ्लिकर करता रहता है कंसोल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं वीडियो शूट करता हूँ सब वीडियो 60 FPS पे शूट करता हूँ, एंड फॉर दैट रीज़न मुझे कहीं ना कहीं 390 एडवेंचर ही ज़्यादा सूटेबल लगा। एंड ऑल्सो इसका जो रोड प्रेजेंस है वो भी बहुत कमाल का है। जब भी कभी ये मोटरसाइकिल को लेके मैं कहीं गया हूँ उधर मुझे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है, एंड दैट्स व्हाई आई चूज दिस 390 एडवेंचर। ऑल्सो दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग KTM मोटरसाइकिल। इसका जो प्रीवियस वर्जन था I rode that motorcycle also for a week, and honestly speaking at that time only I was so impressed by this KTM motorcycle। इसका जो इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसका जो राइडिंग पोस्चर एंड लुक, उसके वजह से मैं उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी एक एडवेंचर टूरर खरीदना है तो आई डेफिनेटली कंसिडर दिस KTM motorcycle। एंड अनदर थिंग, this motorcycle actually fits in my riding style। From early morning smooth rides to long touring days, this motorcycle actually gives me the confidence to ride how I want to ride।
if I want to ride smoothly as a gentleman, then I can ride with this motorcycle whole day. And also if I want to rush from point A to point B, then also I can do with this motorcycle. And for that reason I choose this 390 Adventure. एंड अभी के लिए फ़िलहाल इसको टूरिंग फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने वालों में इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने कर दिया है, जैसे कि ये टॉप ब्रेक हो गया, फिर पेनियर स्टे हो गया, देन ये नकल गार्ड, फिर ये हैंडल बार राइजर जो कि एसएस मोटोकॉर्प की तरफ से मैं लगाया हूँ, फिर इसका नेविगेशन सिस्टम फ्रॉम एओशी वगैरह वगैरह बहुत सारा मॉडिफिकेशंस मैंने करके रखा है। एंड आगे आगे और भी मॉडिफिकेशंस करूँगा। एंड टिल नाउ I can say I am happy with this motorcycle and I hope कि आगे आगे और भी बहुत सारा एडवेंचर मैं इस मोटरसाइकिल के साथ कर पाऊंगा। वैसे तो मेरा प्लान था कि ये मोटरसाइकिल का डिलीवरी मैं लूँगा 2026 को फरवरी के अराउंड, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जो टैक्स को लेके कुछ चेंजेस किया था कि लाइक 350 सीसी के ऊपर जो भी सब मोटरसाइकिल्स है उसके ऊपर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके वजह से मैं ये मोटरसाइकिल को सितंबर 2025 में ही खरीद लिया था। द टाइम व्हेन आई परचेज दिस मोटरसाइकिल आई वाज इन माय होम टाउन, मतलब अगरतला में था। एंड फ्रॉम अगरतला मैं ये मोटरसाइकिल को लिया था। एंड फॉर दैट रीज़न द नंबर प्लेट इज़ ऑल्सो टीआर रजिस्टर्ड। ए बिग थम्स अप टू KTM गुरखावस्ती जो मेरा ये पूरा डिलीवरी प्रोसेस को इतना स्मूथली बनाया। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम whoever comes on that day and made my day special. And another thing I want to thank them also जो लोग नहीं आ पाए एंड बीइंग देयर विथ मी, सपोर्ट किया है कंसिस्टेंटली। उन लोगों के साथ भी कभी और एक नया और एक कुछ बड़ा सा लेंगे इन नियर फ्यूचर और भी ज़्यादा धूम मचाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर कुछ भी क्वेरीज रहता है, कुछ भी क्वेश्चंस रहता है तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। बेझिझक आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम बेस्ड ऑन माय स्किल सेट। इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो देयर आर सम वीडियोज़ जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, वो सब पब्लिक नहीं किया। जस्ट आई वांट टू शूट दिस वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो मैं न्यू परचेज किया है, देन आई विल अपलोड दोज वीडियोज़ ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं आपसे और एक नया दिन के साथ नया वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग रोटेटिंग व्हील्स, बाय बाय।